Good morning, everybody. We'll be starting with organic chemistry, basics of organic chemistry. Now, first of all, understand what is organic chemistry. It is a chemistry of carbon compound where carbon can form large number of compounds compared to any other element in nature. Okay. Now, everything around us, like you, all living things, are made up of what? Carbohydrate, protein, fats, vitamins, is nothing but organic compounds. Plastic, paper, wood, they all are made up of organic compounds. All living things, fruits, vegetables, everything you name are made up of organic compounds. So there are large number of compounds of carbon. And this carbon compounds, the study of this carbon compounds is called organic chemistry. Now, first of all, we'll understand why can carbon form so many compounds in nature. Now, the first reason is tetravalency of carbon. Now, atomic number of carbon is 6. Its electronic configuration is 2, 4. Now, carbon has 4 valence electron. It shares this electron with 4 same or different atoms to form 4 covalent bonds, forming large number of compounds. Okay, so carbon has 4 valence electrons, so it shares this 4 valence electron with 4 different atoms or same atoms to form 4 covalent bonds. Now, if you see, this is methane. Example is methane. I'll remove one hydrogen of methane and replace it by chlorine. I'll get a compound called methyl chloride. और एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करूं और एक क्लोरीन लगा दूं तो ये कंपाउंड को हम बुलाएंगे मिथिलीन डाइक्लोराइड. ऐसे ही I'll go on replacing one more hydrogen. I'll get a new compound that is called chloroform. और एक कंपाउंड और एक हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन लगा दूंगा तो ये कंपाउंड को हम बुलाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड. अभी तुमने देखा सिर्फ मीथेन के 4 हाइड्रोजन मैंने अलग अलग एक क्लोरीन से रिप्लेस करते गया तो मुझे 4 और नए कंपाउंड मिले. तो ऐसे ही क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NO2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, इतने सारे ग्रुप हम उसको लगा सकते हैं और उतने ज्यादा कंपाउंड हमको मिलते जाएंगे. तो एक कार्बन से ही इतने ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं. तो तुम सोच सकते हो इतने ज्यादा कार्बन है तो कितने सारे कंपाउंड्स बनेंगे नेचर में. तो एक रीजन है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है व्हाई कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर. राइट ऑन क्वेश्चन, व्हाई कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर. और पहला रीजन है tetravalency of carbon. And then copy down all this point up till here. Don't write this example. Okay, copy up till here. Then we'll discuss second point.
हो गया कॉपी अप टिल हियर? Okay. Now second point we'll talk about. मीटिंग आईडी और वो दे पासवर्ड। Okay, second point is catenation. Now what is catenation? Carbon atoms have a tendency to link with one another through covalent bonds to form chain and ring. ये क्या होता है कैटेनेशन? डायरेक्ट बॉन्डिंग ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है और लंबी लंबी चेन और रिंग बना सकता है ऐसे. ओके, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर रिंग बन सकती है, लंबी लंबी चेन, और ये लंबी चेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन की हो सकती है. इतनी लंबी चेन, और ये प्रॉपर्टी की वजह से दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटेनेशन. So carbon have a tendency to link with one another through covalent bond to form chain and ring. And because of this two reason, carbon has large number of compound in nature. So second point copy karo, catenation. Just write down catenation. Don't copy any example. Just write down catenation. Carbon atom have a tendency to link with one another through covalent bonds to form chains and rings. Okay. तो ये रीजन है कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है नेचर में. इसके बाद लिखना है 10 कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर. ये दो रीजन के नीचे लिखना है 10 कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन नेचर. चलो अभी आगे देखेंगे अल्केन्स. अभी अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड. एलिफेटिक वर्ड का मतलब होता है ओपन चेन, यहाँ पे रिंग नहीं होती है, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं. और हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. So alkanes are defined as saturated aliphatic hydrocarbon. Saturated means they have carbon to carbon single bond. Aliphatic means open chain. And hydrocarbon means they are made up of carbon and hydrogen only. So write down heading alkanes. Alkanes are saturated aliphatic hydrocarbon. Saturated means carbon to carbon single bond. Aliphatic means open chain. And hydrocarbon means made up of carbon and hydrogen only. अभी उसका जनरल फॉर्मूला लिखो CnH2n+2. जनरल फॉर्मूला राइट इट डाउन CnH2n+2. अभी देखो ये जनरल फॉर्मूला का क्या मतलब होता है अभी समझाता हूं. ओके, पहले समझना फिर बोलूंगा उतना ही लिखना. देखो अगर CnH2n+2 n की जगह पे 1 डालोगे
तो ये कंपाउंड जो बनता है C1, 2 1 2 + 2, तो H हो जाएगा 4। तो ये कंपाउंड को हम बुलाते हैं मीथेन। ओके, तो N की जगह पे 1 डालोगे तो ये कंपाउंड जो बनेगा उसका नाम है मीथेन। अभी लिखना नहीं। N की जगह पे 2 डालोगे तो C2 हो जाएगा और H will become 6. So C2H6 is called ethane. N की जगह पे 3 डालोगे तो C3H8, that compound is called propane. Similarly, C4H10 is called butane. C5H12 is pentane. तो सिर्फ नाम और फॉर्मूला ही लिखना है, ये सब नहीं लिखना है. Name and formula, only two things you write it down. Okay, can't write down name and formula. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहां तक कॉपी करो सिर्फ. ओके, देखो फिर N की जगह पे हम 6 डालेंगे तो ये जो अल्केन मिलेगा उसका नाम है हेक्सेन. तो ये हो जाता है C6. हाँ, C6H14, यहाँ पे C6 लिखना. C6H14. C7H16 is heptane. C8 डालोगे तो ऑक्टेन. C9 नोनेन और C10 इज डेकेन. तो ये लाइन में याद रखना है. एक कार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन. ओके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन लाइन में याद रखो और बोलो एक साथ. यू हैव टू से, रिपीट.
फिंगर्स पे काउंट करना है नंबर्स और बोलते जाना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 10 कार्बन तक लाइन में याद रखना है। ओके, सब लोगों ने लिखा? You have to remember in order, huh? Methane, ethane, propane, butane, pentane, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। और बोलते जाओ। कौन रिपीटिंग इट? 10 कार्बन तक याद रखना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी देखो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4 मतलब कितने एग्जैक्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, number of carbon, number of hydrogen, or whatever elements are exactly present in a molecule, that is called molecular formula. And when you show bonding, then it becomes a structural formula. और उसी को कंडेंस फॉर्म में लिखो तो कंडेंस फॉर्मूला हो जाता है। ओके, सो कंडेंस फॉर्म में द बॉन्डिंग इज नॉट शोन। तो अभी मीथेन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कंडेंस फॉर्मूला इज सेम। अभी देखो, इथेन के लिए लिखेंगे तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। अब इसकी बॉन्डिंग देखोगे तो 2 कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी एवरी कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स। तो ये कार्बन के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अभी इसको कंडेंस करके लिखोगे तो ये CH3 है, फिर डैश करके वापस से CH3 है, यहाँ पे लिखोगे CH3 CH3। यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं दिखाते, तो इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्मूला। और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो कम ऑन, राइट डाउन फर्स्ट वन मीथेन, और फिर इथेन का कॉपी करो, देन आई शो यू फॉर प्रोपेन ऑल्सो। चलो मीथेन इथेन का कॉपी करो, देन विल राइट फॉर प्रोपेन। अभी देखो प्रोपेन में कैसे जाएगा? 3 कार्बन की लंबी चेन, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन का बॉन्ड पहले। अब ये कार्बन के एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगाने का। ये कार्बन, देयर आर 2 बॉन्ड्स, सो वी राइट 2 more हाइड्रोजन। दिस कार्बन हैज ओनली 1 बॉन्ड, सो वी राइट 3 हाइड्रोजन। एवरी कार्बन शुड बी 4 बॉन्डेड।
हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, बस वो याद रखना है। अभी देखो इसको कंडेंस कैसे करोगे, तो ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो इसका कंडेंस फॉर्मूला है CH3 CH2 CH3। नाउ सिमिलरली ट्राई फॉर ब्यूटेन, ब्यूटेन का तुम खुद से ट्राई करो। So write molecular formula, structural formula, condensed formula. अभी देखो 4 कार्बन है, तो पहले 4 कार्बन की लंबी चेन बना दोगे, कार्बन कार्बन कार्बन। सो मेक फर्स्ट अ चेन ऑफ 4 कार्बन। अभी ये कार्बन का एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाने का। ये कार्बन 2 बॉन्ड, सो वी राइट 2 मोर हाइड्रोजन। This carbon again 2 bonds, so we write 2 more hydrogen. And this carbon only 1 bond, so we write 3 hydrogen. अब इसको कंडेंस करना है, तो ये हो जाएगा CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3. So it is CH3 CH2 CH2 CH3. So this is condensed formula. Molecular formula, structural formula, condensed formula. Molecular formula gives exact number of atom present of each atom in a molecule. Structural formula show you the bonding. And condensed formula, here we don't show the bonding, but we write similar group together and we condense them, and that is called condensed formula. अब ये ब्यूटेन में तुम CH2 को ब्रैकेट में डाल के 2 टाइम्स ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। CH3 फिर CH2 2 times and then CH3, so even that is allowed. अभी we'll try for pentane. Okay, we'll try for pentane now. यहाँ तक कॉपी हुआ ना? So we'll do for pentane C5H12. अभी पहले 5 कार्बन की लंबी चेन बना दो, C C C C C 5 कार्बन. अभी ये कार्बन only 1 bond, so we write 3 hydrogen. This carbon 2 bonds, so we write 2 more. 2 bonds, so 2 more. 2 bonds, so 2 more. 1 bond, so 3 more. अभी देखो इसको कंडेंस कैसे करना है, CH3, फिर ये CH2 CH2 CH2, कितनी बार है CH2 CH2 CH2? 3 टाइम्स, और फिर वापस है CH3. तो CH3 लिखना है, देन वी राइट CH2 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 3 टाइम्स, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है, एंड देन वी राइट CH3. So this is called pentane. Now same thing you'll do for hexane. Come on, C6H14. We have to do 2 more, hexane and heptane.
अभी हेक्सेन के लिए देखो C6 है, हाँ C6H14, डोंट राइट C4, C6H14। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, सो राइट ऑल 6 कार्बन इन अ लाइन। फिर ये कार्बन 1 बॉन्ड, सो वी राइट 3 हाइड्रोजन, 2 bonds or 2 more, 2 bonds or 2 more, 2 bonds or 2 more, similarly 2 bonds or 2 more। अभी CH2 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 कितनी बार हो गया? 4 बार। सो ये कॉर्नर वाला CH3, देन CH2 4 टाइम्स, फिर से CH3। ओके, सो राइट ऑन C6H14, दैट इज हेप्टेन, सॉरी हेक्सेन। अभी लास्ट वाला हेप्टेन, C7H16। ओके, दिस इज हेप्टेन। यहाँ पे CH3 यहाँ पर भी है, CH3 यहाँ पर भी है, और बीच में CH2 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 5 times। ओके, that is 5 times। so that is heptane। Okay, everybody done up till here? Now next one, देखो ये याद रखना है, चेन लेंथ एंड रूट वर्ड। मैंने तुमको बोला था एक कार्बन मतलब मिथ, मीथेन, 2 कार्बन मतलब इथ, 3 मतलब प्रोप, 4 मतलब ब्यूट, 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हेक्स, 7 कार्बन को कभी भी हेप्ट बुलाओगे, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नोन, और 10 है तो डेक। ये ऑर्डर में याद रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार जब भी एक कार्बन होगा तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक, यही ऑर्डर में हम जाएंगे हमेशा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। Come on, so write down this chain length and root word. 1 carbon means myth, 2 carbon means ith, 3 means prop, 4 means but, 5 means pent, 6 means hex, hept, oct, non and dec।
ओके, यहां तक लिखा मिथ, ith, prop, but, pent, hex, hept, oct, non and dec. So to just remember this. Okay, okay, now listen further. हाँ, तो हमेशा याद रखना है, this is the chain. 1 carbon means meth, 2 means eth, 3 means prop, 4 means but, 5 means pent, 6 means hex, 7 means hept, 8 means oct, 9 means non, and 10 carbon means dec. You have to remember this in this order only. Very, very important. Okay. Now we'll stop here. And we'll continue this in next class. I'll let you know when the next class will be. Okay.